ایک بادشاہ جسے لگتا تھا وہ خدا ہے، ایک خواب جس نے اس کی نیند ہمیشہ کے لیے چھین لی، ایک حکم ہر پیدا ہونے والا بچہ قتل کر دیا جائے، ایک ماں جو اپنے دودھ پیتے بچے کو دریا کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئی، ایک ٹوکری جو نیل کے پانی پر تیرتی ہوئی تقدیر لکھ رہی تھی، وہی بچہ اسی کے محل میں پلا جسے وہ مٹا دینا چاہتا تھا۔ وقت گزرا اور ایک دن وہ بچہ ایک لاٹھی لے کر کھڑا تھا، سامنے مصر کی سب سے بڑی سپر پاور، پیچھے ایک مظلوم قوم، اور پھر سمندر پھٹ گیا۔ مصر دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت، نیل بہہ رہا ہے، سونا چمک رہا ہے، محل آسمان کو چھو رہے ہیں، مگر طاقت جب اپنی انتہا پر پہنچتی ہے تو اسے اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا، آگ، ایک روشنی بنی اسرائیل کی بستیوں سے اٹھی، اور مصر کے محلوں کو نگل گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا ہے، پسینے میں بھیگا ہوا۔ نہیں، میں زوال نہیں ہو سکتا، میں رب ہوں، میں حکم دیتا ہوں اور نیل رک جاتا ہے، مجھے کون گرا سکتا ہے؟ نجومی سجدے میں جھکتے ہیں۔ بادشاہ اعلیٰ، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ سناٹا۔ فرعون کے چہرے پر پہلے خوف آتا ہے، پھر غصہ، پھر تکبر۔ تو پھر تقدیر کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دو۔ حکم ہے قاضی، بنی اسرائیل کا ہر نیا پیدا ہونے والا لڑکا مار دیا جائے۔ ایک ماں اپنے بچے کو چھپا رہی ہے، ایک سپاہی بچے کو چھین لیتا ہے، نیل کی ہوا بھی بھاری ہو گئی۔ یہ صرف سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک ڈکٹیٹر کا وار تھا خدا سے۔ فرعون کو لگتا تھا کہ وہ تقدیر لکھ سکتا ہے، مگر تقدیر لکھنے والا کوئی اور تھا۔ ایک کمرہ، اندھیرا، ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگائے ہوئے، باہر سپاہیوں کے جوتوں کی آہٹ، اس کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ پھر اللہ نے اس ماں کے دل میں الہام ڈالا، اسے دودھ پلا، پھر جب خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور غم نہ کر، ہم اسے تجھے واپس لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ یا اللہ، میں کیسے؟ یہ میرا بچہ ہے، مگر تو کہہ رہا ہے تو میں بھروسہ کرتی ہوں۔ چھوٹی سی ٹوکری لہروں پر ہلتی ہوئی، ماں دور سے دیکھ رہی ہے، اس کا جسم کانپ رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ایمان ہے۔ اس لمحے دنیا کے دو سسٹم آمنے سامنے تھے، ایک فرعون کا نظام، دوسرا اللہ کا پلان۔ فرعون تلوار لے کر کھڑا تھا، اللہ ایک ٹوکری لے کر۔ ٹوکری محل کے پاس جا لگتی ہے، محل کے نوکر نکالتے ہیں، بچہ رو رہا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ اسے دیکھتی ہے،
ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। शायद ये हमें फायदा दें या हम इसे बेटा बना लें। एक बच्चा? मेरा जवाल? तुम लोग ख्वाबों से डरते हो, मैं खुदा हूं। तकब्बुर का सबसे बड़ा अंधापन ये होता है कि वो अपने करीब खतरे को नहीं पहचानता। जो बच्चा उसका जवाल था वो उसी के महल में पलने लगा। बच्चा किसी और का दूध नहीं पीता, महल परेशान। तब एक लड़की कहती है, क्या मैं एक औरत बताऊं जो इसे पाल सके? वो लड़की मूसा की बहन थी और मूसा अपनी माँ की गोद में वापस। फिरौन समझता रहा कि वो कंट्रोल में है, मगर कंट्रोल कब का उसके हाथ से निकल चुका था। वक्त गुजरा और वो बच्चा जिसे दरिया ने बचाया था जवान होने लगा। महल के साए में पला, मगर उसका वजूद महल का नहीं था। उसके कपड़े शहजादों जैसे थे, मगर उसकी रूह मजलूमों के साथ धड़कती थी। एक तरफ सोने के महल थे, दूसरी तरफ पत्थर उठाती हुई एक कौम। एक तरफ हुकूमत का नशा, दूसरी तरफ चीखों की गूंज। और मूसा उन दोनों दुनियाओं के बीच खड़ा था, न पूरी तरह महल का, न पूरी तरह बस्ती का। वो चल रहा था, मगर अंदर से सवाल कर रहा था, मैं कौन हूं? उनका हिस्सा जो हुक्म देते हैं, या उनका जिन पर हुक्म चलाया जाता है? फिरौन समझता रहा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मगर कंट्रोल कब का उसके हाथ से निकल चुका था। क्योंकि अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उसे महल में भी रखे, तब भी उसका दिल जंजीरों को महसूस करता है। और एक दिन वो लम्हा आने वाला था जब मूसा सिर्फ देखेगा नहीं, बल्कि फैसला करेगा। शहर का एक दिन, गर्मी, गर्द और लोग अपनी रोजी में मसरूफ, मगर अल्लाह के लिखे हुए लम्हे अक्सर आम दिनों में छुपे होते हैं। मूसा शहर में दाखिल हुए और उन्होंने देखा दो आदमी लड़ रहे थे, एक उनकी कौम का, दूसरा फिरौन के निजाम का। जुल्म और गुस्सा आम था, मगर उस दिन वो उनके सामने था। मजलूम ने पुकारा, मदद करो। और मूसा ने देखा, एक तरफ ताकत का नशा, दूसरी तरफ कमजोरी की चीख। उस लम्हे उन्होंने फैसला नहीं सोचा, उन्होंने रिएक्ट किया। एक मुक्का, बस एक मुक्का। मगर जब हाथ वापस आया तो सामने वाला जमीन पर था, खामोश, बेजान। हवा रुक सी गई, शहर चुप हो गया। और मूसा के दिल में पहली बार, ये मैंने क्या कर दिया? ये मेरा इरादा नहीं था। ये जुल्म का जवाब था, मगर अंजाम मौत था। उस लम्हे उन्होंने समझा, ताकत सिर्फ महल में नहीं होती, ताकत जिम्मेदारी भी मांगती है। वो उस जिस्म को देखते रहे, फिर उनकी जबान से निकला, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म कर लिया, मुझे माफ फरमा। ये पल सिर्फ एक कत्ल का नहीं था, ये पल एक नबी के सफर का नया मोड़ था। क्योंकि जब इंसान टूटकर अल्लाह की तरफ मुड़ता है, तब उसकी असली तरबियत शुरू होती है। और फिरौन, वो अब भी समझ रहा था कि सब कंट्रोल में है, मगर एक शहर में खबर फैल चुकी थी और तकदीर ने रफ्तार पकड़ ली थी। रात गहरी नहीं हुई थी, मगर खबर फैल चुकी थी। महल के दीवारों में सरगोशियां चल रही थीं। उसने एक आदमी को मार दिया। फिरौन का निजाम हिल गया था। सुबह होने से पहले एक आदमी दौड़ता हुआ आया, सांस फूली हुई, आंखों में खौफ। आए मूसा, बुजुर्ग तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे, यहां से निकल जाओ। उस लम्हे न तख्त था, न महल, सिर्फ जिंदा रहना था। मूसा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न सोना, न शान, न वो महल जहां वो पले थे। वो चल पड़े, अकेले, सहरा की तरफ। ये हिजरत थी,
मगर भाग कर नहीं, तरबियत के लिए। रास्ता लंबा था, पानी कम था, जिस्म थक रहा था, मगर दिल में एक नया एहसास पैदा हो रहा था। मेरा रब मेरे साथ है। और जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है, तब अल्लाह उसे नया सब कुछ देता है। दिन गुजरते गए, पैरों के निशान रेत में घुल गए, मगर तकदीर के निशान मजबूत होते गए। फिर एक दिन दूर से पानी नजर आया, मदियन। यहां से कहानी का नया बाब शुरू होगा। महल का शहजादा अब एक मुसाफिर था, और मुसाफिर कभी कभी नबी बनने से पहले सब कुछ खोना पड़ता है। और मदियन में किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। एक कुआं और उसके गिर्द लोग। हर शख्स अपने जानवरों को पानी पिला रहा था, मगर दो साए दूर खड़े थे, इंतजार करते हुए। मूसा ने देखा। उन्होंने पूछा, तुम दोनों क्यों रोकी हो? उन्होंने कहा, हम तब तक पानी नहीं भर सकती जब तक ये मर्द चले न जाएं, और हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग हैं। ये अल्फाज सिंपल थे, मगर मूसा के लिए ये इंसानियत का इम्तिहान था। उन्होंने भीड़ को चीरकर कुआं का बोझ उठाया, पत्थर हटाया और पानी निकालकर उन दोनों के जानवरों को पिला दिया। कोई बदला नहीं मांगा, कोई नाम नहीं बताया, बस एक खामोश नेक काम। फिर वो एक दरख्त के नीचे जा बैठे, थके हुए, अकेले, और उनकी जुबान से निकला, ऐ मेरे रब, जो भी खैर तू मुझ पर नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूं। ये दुआ सिर्फ रोजी की नहीं थी, ये दुआ रहनुमाई की थी। और अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद उन दो लड़कियों में से एक हया के साथ वापस आई। हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको उस एहसान का बदला दे सके। यहां से कहानी बदलती है। मूसा अब भागने वाला मुसाफिर नहीं था, वो मेहमान था, फिर दामाद बना, और फिर 10 साल तक आम जिंदगी जी। 10 साल जो किसी और के लिए वक्त का टुकड़ा हो सकते हैं, मगर मूसा के लिए ये ट्रेनिंग थी, सब्र की, मेहनत की, खुद को पहचानने की। क्योंकि जब अल्लाह किसी को फिरौन के सामने खड़ा करता है, तो पहले उसे सहरा में मजबूत बनाता है। और जब 10 साल मुकम्मल हुए, तो सफर फिर शुरू हुआ। मगर इस बार मूसा अकेला नहीं था, और ना ही वो भाग रहा था। अब तकदीर उसे बुला रही थी, दूर के पहाड़ों की तरफ, और वहां आग जल रही थी। मगर वो आम आग नहीं थी, वही आग दुनिया बदलने वाली थी। रात ठंडी थी, सहरा खामोश, आसमान सितारों से भरा हुआ। मूसा अपने घर वालों के साथ सफर पर थे, मगर उनकी नजर दूर किसी चीज पर टिक गई। पहाड़ के दामन में एक रोशनी, एक आग। उन्होंने कहा, तुम यहीं रुकना, मुझे आग नजर आ रही है, शायद मैं वहां से कोई खबर लाऊं या कुछ अंगारे। वो पहाड़ की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ हवा बदल रही थी, खामोशी गहरी हो रही थी। फिर एक आवाज, न इंसानी न जमीनी, ऐ मूसा। उनका जिस्म जम गया, दिल जोर से धड़कने लगा। ऐ मूसा, मैं हूं तुम्हारा रब। जमीन हिलती महसूस हुई। ये वो लम्हा था जहां से दुनिया 2 हिस्सों में बंटने वाली थी। अपनी जूतियां उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में हो। मूसा ने जूतियां उतारी, सर झुकाया। रात की सर्दी में रूह का बोझ हल्का होने लगा। मैंने तुम्हें चुन लिया है। जो कहा जा रहा है गौर से सुनो। ये सिर्फ कलम नहीं था, ये जिम्मेदारी थी, ये रिसालत थी। मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मेरी इबादत करो और नमाज कायम करो। रात की तारीकी में हक का नूर जग उठा। फिर हुक्म आया, अपना असा फेंको। असा जमीन पर गिरा और अचानक
वो सांप बन गया, जिंदा, हिलने वाला। मूसा पीछे हट गए, मगर आवाज आई, पकड़ लो, डर मत। ये सिर्फ मोजिजा नहीं था, ये यकीन की ट्रेनिंग थी। जब अल्लाह साथ हो तो खौफ की जगह ईमान लेता है। फिर दूसरा निशान, हाथ बगल में डालो, और जब निकाला तो वो नूर से चमक रहा था। ये कुदरत का इजहार था। अब मूसा वो मुसाफिर नहीं रहे, अब वो रसूल थे, और उन्हें वापस जाना था, उसी फिरौन के पास जहां से कभी भाग कर निकले थे। मगर इस बार वो अकेला नहीं था, उनके साथ रब का कलम था। तूर की वादी में आसमान से आवाज आई, ऐ मूसा, फिरौन के पास जाओ, वो हद से बढ़ चुका है। ये सिर्फ एक पैगाम नहीं था, ये दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत को चैलेंज करने का हुक्म था। मूसा ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, हम तुम्हें तुम्हारे भाई के जरिए ताकत देंगे। और यूं दो भाई एक मिशन पर रवाना हुए। मिस्र का दरबार, सोने के सुतून, लाल फर्श और तकब्बुर से भरा एक बादशाह, फिरौन। उसने मूसा को देखा और हंसकर बोला, क्या तुम वही नहीं जो मेरे महल में पले थे? मगर मूसा का जवाब साफ था, मैं रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर आया हूं, बनी इसराइल को आजाद करो। मूसा, अगर तुम सच कहते हो तो कोई निशानी दिखाओ। मैदान भर चुका था, हजारों लोग और मिस्र के सबसे बड़े जादूगर। उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी और लोगों को लगा जैसे जमीन पर सांप रेंग रहे हों। मगर फिर अल्लाह का हुक्म आया, मूसा, अपना असा फेंको। जैसे ही असा जमीन पर गिरा, वो एक जिंदा अजदहा बन गया। और उसने जादूगरों का सारा जादू निगल लिया। मैदान खामोश हो गया। फिर जादूगर जमीन पर सजदे में गिर गए और पुकार उठे, हम ईमान लाए। मूसा और हारून के रब पर। फिरौन का चेहरा गुस्से से भर गया। तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान लाए? उसने धमकी दी, मैं तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। मगर जादूगर बोले, हमें कोई परवाह नहीं, हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। उस दिन फिरौन का खौफ नहीं, ईमान जीत गया। जुल्म बढ़ता गया। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मूसा, अपनी कौम को रात के अंधेरे में मिस्र से निकाल लो। और यूं हजारों बनी इसराइल रात की तारीकी में रवाना हुए। मगर सुबह फिरौन को खबर मिल गई। उसने फौज जमा की, उन्हें पकड़ो। आगे समंदर था, पीछे फौज। लोग घबरा गए। मूसा, अब तो हम पकड़े गए। मगर मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह का हुक्म आया, मूसा, अपना असा समंदर पर मारो। मूसा ने असा उठाया और समंदर पर मारा। और फिर जो मंजर हुआ वो तारीख का सबसे बड़ा मोजज़ा था। समंदर फट गया और बीच में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते पर चलकर समंदर पार कर गए। मगर फिरौन अब भी गुरूर में था। वो अपनी फौज के साथ समंदर के अंदर घुस गया और जैसे ही आखिरी आदमी अंदर पहुंचा, पानी के पहाड़ दोबारा मिल गए। फिरौन डूब गया। उस वक्त उसने चीख कर कहा, मैं ईमान लाया। मगर जवाब आया,
अब जबकि तुम पहले नाफरमानी करते रहे। एक बादशाह जिसने खुद को खुदा कहा आज तारीख का सबसे बड़ा इबरत बन चुका है, और मूसा एक भागने वाला मुसाफिर अल्लाह का रसूल बन गया। और दुनिया को पता चल गया कि जब हक और तकब्बुर आमने सामने आते हैं तो जीत हमेशा हक की होती है।